Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Energy solutions and storage systems are essential for a sustainable, resilient, and cost effective energy future. They support renewable energy growth, enhance grid stability, and reduce environmental impacts. Today, we are going to meet SIH 2024 winning team that has created solutions in this area. So, let us meet Team Vikrama. Welcome to the show, Vikrama team. Thank you, sir. So, to begin you with, Sakshi, let me take this opportunity to welcome you all and then ask you to introduce your team first to begin with. Sure, sir. So, sir, this is Team Vikrama presenting in front of you. We are the dynamic team presenting. We have two members from mechanical, two from electronics, and two from electrical, having the strong fundamentals in their own branches. Our proposed solution was Vikrama Sync for the grid stabilization and to support and stabilize the grid. Our problem statement was like to design and development of energy storage system which will integrate with intermittent renewable energy sources and to stabilize the grid. And our proposed solution was Vikrama Sync. Vikrama Sync is the hybrid solution which includes the two main storage areas, which will include. So before we talk about the solution, let us try to have some hang of the problem itself. So you did choose this problem. Was it your choice, or do you think some factors led to make you choose this? And can you explain the problem in a very broader term and in depth so that we understand it better? So yeah, talking about the problem statement, how did we choose the problem statement and all? So starting with the choosing of the problem statements, we went through all the 68 problem statements which were in the hardware categories. Firstly, we just decided where to put our efforts on, either on a software problem statement or either on hardware problem statement. And yeah, we all are from the robotics background, as we all belong to same club, which is RNXG, Robotics for Next Generation. It's an official robotics club of our college. So we did some few of the projects earlier too, and we were working on such kind of project which we find the problem statement on. And while we suffering all the problem statements, we got this problem statements. And जैसे हमने देखा सर बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखे एंड ऑल. सो हार्डवेयर में एनर्जी सेक्टर्स में मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जैसा मेरा क्वाइट इंटरेस्ट था, rather than as a team, my team did supported me on this problem statement. So I just saw this problem statement and I thought that we do have the solution for this. If we do invest our time on this, we can definitely have a great solution on this problem statement. तो आपको लगा कि आपका स्ट्रेंथ है. So ऐसा क्यों लगा आपको? आपने ऐसे कुछ काम किया था इससे पहले या कोई ऐसा बैकग्राउंड था आपका? सर ऐसा क्वाइट बैकग्राउंड ऐसा नहीं था. जैसे आई डू बिलोंग टू इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, सो जैसे मैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के देख रहा था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो उनमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे हिट किया कि वी कैन बिल्ड अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. जो भी चीजें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई गई थी वो हमारे ऑलरेडी करिकुलम में थी. जैसे हमारा एकेडमिक करिकुलम था उसमें सब कुछ था, जैसे कि एक इंटरमिटेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए ये बनाना था हमने. सो इंटरमिटेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर है, विंड है, जियोथर्मल है, एंड अराउंड सोलर एंड विंड सब मैक्सिमम पोर्शन इन दोनों एनर्जी का है रिन्यूएबल एनर्जी में देखा जाए तो. सो एंड सर ये ऑलरेडी हम सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी लर्न करते हैं हमारे एकेडमिक करिकुलम में. सो मैं सोचा कि ये इस सॉल्यूशन पे अपन इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का अपन सॉल्यूशन निकालते हैं. सो यू बेसिकली थॉट कि जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं एंड यू कैन कम अप विद समथिंग रियली गुड, राइट? सो अभी टेल मी अबाउट द मेकिंग द टीम फॉर्मेशन आपने कैसे किया, कैसे सोचा कि ये लोग सूटेबल रहेंगे और कौन क्या काम करेगा?
श्योर सर, जैसे साक्षी ऑलरेडी टोल्ड दैट कि हमारे जो दो टीममेट्स है, साक्षी एज वेल एज अंशुता, दे बिलोंग टू मैकेनिकल बैकग्राउंड. Shantanu and Bharat belongs to electronic background, and me and Siddhi belongs to electrical background. So sir, already सबके core branches है and they all best in their subjects and particular domains. So हमने देखा कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जैसे अप्रोच करना चाहिए. So किसके किन किन लोगों का मतलब कंपोजिशन हमें चाहिए, या फिर क्या क्या लोग हमें बेनिफिशियल हो सकते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए. So उस हिसाब से हमने हमारी टीम फॉर्म की. एंड क्योंकि टीम फॉर्मेशन में सर जैसे कि तीनों का कंट्रीब्यूशन इक्वली था. इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा पूरा सॉल्यूशन था उसमें प्रॉपरली इनका ये आया इन्वॉल्वमेंट. सेम गोज विद इलेक्ट्रिकल एंड सेम गोज विद मैकेनिकल. Okay, जैसे कि now let's try to just understand कि solution आप क्या निकाल के लाए, कैसे आपने उस पे काम किया और इवेंचुअली फिर क्या solution निकला. जो हमारे सॉल्यूशन का अप्रोच था हमारा इन प्रेजेंटेशन राउंड, वो ये था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है उनमें कुछ बदलाव ला सके, मतलब हम उन्हीं में कुछ बदलाव लाकर हमारा सॉल्यूशन को अप्रोच करें, या फिर कुछ नया सॉल्यूशन बनाए, या फिर एक पूरा नया एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाए. सो वी डिड चूज द फर्स्ट अप्रोच. हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम था उसमें हम क्या चेंजेस ला सकते हैं वो हमने देखा. तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन है, मतलब जो बैटरीज का है, तो सर हमारा जो सॉल्यूशन था वो था एक फॉल्ट सेल डायग्नोसिस ऑफ अ बैटरी. तो जैसे इंडिया में हर साल अराउंड 21,000 टन ऑफ लिथियम आयन बैटरीज वेस्ट जाती है. एंड सेम सर हर 1,000 टन ऑफ बैटरीज बनाने के लिए अराउंड $21 मिलियन लगते हैं. तो सर जब हमने कैलकुलेट किया तो हर साल इंडिया का अराउंड $750 बिलियन का लॉस हो रहा था इन जस्ट लिथियम आयन बैटरी सेक्टर. तो हम सोचे कि इतना बड़ा जो ये है लॉस, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ नया अप्रोच क्या ला सकते थे. तो जो सर ऑलरेडी वेस्ट जाती है लिथियम आयन बैटरीज, तो जैसे कि एक टिपिकली हम एग्जांपल लेते हैं एक 3 सेल लिपो बैटरी का 12 वोल्ट की. तो सर एक 12 वोल्ट की 3 सेल टिपिकल लिथियम आयन बैटरी का कंसिस्ट ऑफ 3 सेल्स एंड ईच सेल का वोल्टेज होता है अराउंड 4 वोल्ट्स. एंड सर इफ इन केस दो वोल्टेज 3.2 वोल्ट से एक सेल का ड्रॉप होता है तो वो बैटरी वेस्ट में जाती है. मतलब अराउंड 4 टाइप्स के फॉल्ट्स हो सकते हैं जो कि एक बैटरी में आते हैं. एक थर्मल रन अवे, एक ओवरचार्जिंग, डिस्चार्जिंग, एंड द अदर वन इज आई गेस ओवरहीटिंग एंड ऑल. तो 4 टाइप के फॉल्ट्स होते हैं मेजरली जो लिथियम आयन बैटरीज में आते हैं. एंड सर आजकल लिथियम आयन बैटरीज हर जगह पे यूज होती है. यू जस्ट नेम द सेक्टर एंड देयर कम्स लिथियम आयन बैटरी. क्योंकि विदाउट अ लिथियम आयन बैटरी वी कांट स्टोर द एनर्जी जो ऑलरेडी है. तो इसलिए हमने हमारा अप्रोच इस तरह देखा था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उसमें किस टाइप के फॉल्ट्स आ सकते हैं और वो फॉल्ट को हम कैसे डायग्नोस करके बेटर कर सकते हैं. तो ये हमारा सॉल्यूशन था. तो सर पूरा जो सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेगा, सो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सिस्टम टू Shantanu to go with the flow. Sure. Yeah. Please. Yes, sir. Am I audible, sir? Yeah. Please carry on. Okay, sir. So the problem was in the cells. Okay. So जब भी कोई एक सेल एक बैटरी पैक में से खराब होता है तो हमें पूरी बैटरी पैक जो है उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है, क्योंकि हम वो जो पूरा एक सेल है वो बैटरी पैक में एम्बेडेड है. तो हमारे सिस्टम में हमने ऐसे अप्रोच किया था कि इफ इन केस एक बैटरी पैक में से एक हाथ सेल अगर खराब होता है तो उसको हम ऑटोमेटिकली आइसोलेट कर दें. मतलब अगर सेल को अगर आइसोलेट कर दिया और उस सेल को मतलब वो जो बैटरी है उसको इंटैक्ट रखें, तो ये हमारा प्राइमरी अप्रोच था इस प्रॉब्लम का. तो और हर एक सेल का जो हर एक पैरामीटर्स है, उसका करंट हो गया, उसके वोल्टेज हो गया और उसका टेम्परेचर हो गया, ये हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे. और वो सारा जो डेटा है वो ऐसे टाइम सीरीज डेटा हम कलेक्ट करके उसे एक एआई मॉडल को फीड करके हम एक प्रेडिक्शन मॉडल भी क्रिएट किया था, जिसका मतलब कि हम प्रीवियस जो डेटा है उसको एनालाइज करके हम प्रेडिक्ट कर पाए कि ये जो सेल है ये अगले एक दिन में या फिर कुछ समय बाद खराब हो सकता है. तो उसके लिए एक बैकअप सिस्टम पहले से मतलब बना के रखो यहाँ. तो दैट वाज आवर प्राइमरी सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम. ओके, सो ये जो आपने प्रोडक्ट डेवलप किया विक्रमा सिंक, सो अगर मैं इसका प्रोसेस जानने का कोशिश करूं, फ्लो ऑफ वर्किंग कैसे रहता है, तो उस हिसाब से कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे मुझे? सो यस सर, ये प्रोटोटाइप बनाने के लिए हमारे पास पूरे 5 दिन का टाइम था.
हमारी फर्स्ट डे हैकेथॉन स्टार्ट हुई थी अराउंड 5 बजे इवनिंग को। फर्स्ट डे मेंटरिंग हुआ था। जो जजेस आए थे उन्होंने एक मेंटरिंग सेशन हेल्ड किया था, जहाँ पे वो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हमारा प्रपोज सॉल्यूशन सुनेंगे और प्रोसीड करने के लिए बोलेंगे कि द सॉल्यूशन इज वैलिड और नॉट। सो मेंटरिंग सेशन हुआ, उसके बाद जजेस ने जज किया और हमें प्रोसीड करने के लिए बोला। और स्टार्टिंग में जितने भी हमारा सर्किट बिल्डिंग था उसे सिमुलेटर पे सिमुलेट करने के लिए बोला था। तो फर्स्ट डे का टास्क हमारा टू सिमुलेट द सर्किट्स था। तो फर्स्ट डे का टास्क हमने लाइक फर्स्ट डे और सेकेंड डे के 1/2 में कर लिया था। आफ्टर दैट सेकेंड डे पे हमारा एक जजिंग सेशन हुआ था, जहाँ पे जजेस ने हमारे सर्किट्स जो बिल्ड किए थे वो जज किए। वहाँ पे थोड़े फॉल्ट्स आए थे बट जजेस वर क्वाइट फ्रेंडली, सो उन्होंने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड हाउ टू टैकल विद इट। उसके बाद थर्ड सेकेंड मेंटरिंग सेशन आया, जहाँ पे उन्होंने हमें प्रोसीड करने के लिए बोला हमारे हार्डवेयर सर्किट के ऊपर और हार्डवेयर केसिंग के ऊपर, जो जिसके अंदर हमारा पूरा सर्किट और हमारा प्रोटोटाइप इनबिल्ड होगा। तो सेंसर्स जो हमें प्रोवाइड किया गया था एसआईएच की तरफ से, हमने वो यूज़ किया और सर्किट बिल्डिंग स्टार्ट की। साइड बाय साइड हम हमारे केसिंग के ऊपर वर्क कर रहे थे। हमने कैड मॉडल्स बनाए फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन एंड सिमुलेशन। सॉलिड वर्क्स और फ्यूजन 360 यूज़ करके बनाए और हीट डिसिपेशन के लिए प्रॉपर स्टडी करके कैलकुलेशंस किए थे। आफ्टर दैट द सर्किट और हार्डवेयर जो बन गया था उसके लिए एक जजिंग सेशन हुआ थर्ड डे। उस जजिंग सेशन में मेंटर्स ने थोड़े मिस्टेक्स निकाले एंड देन उसके ऊपर काम करने के लिए बोला। सो ऑन 3 days पास हो गए। साइड बाय साइड नोडल सेंटर में बहुत सारे एक्टिविटीज हो रहे थे, लाइक हमें रिलैक्स करने के लिए, लाइक हैकेथॉन 24 आवर्स की 24 आवर्स डे में चल रही थी, सो फॉर द मेंटली स्टेबल रहने के लिए। सो ऑनवर्ड थर्ड डे हमारा ऑल ओवर द हार्डवेयर एज वेल एज द सर्किट ऑलमोस्ट हो गया था। ऑन द फोर्थ डे वंस अगेन मेंटरिंग सेशन हुआ, जहाँ पर जजेस ने मेंटर किया कि और इसमें अच्छा क्या कर सकते हैं और क्या इसमें और बिल्ड हो सकता है, लाइक हमारे प्रपोज्ड सॉल्यूशन के अलावा। तो वहाँ पे हमने हमारा जजेस ने हमारा जो स्विच था, जैसे शांतनु ने एक्सप्लेन किया, सर्किट को कट आउट करने के लिए स्विच था, फॉल्ट डायग्नोसिस, उसको जज किया, मेंटर किया मेंटर्स ने। एंड सो ऑन हमारा 4th डे खत्म हो गया एंड ऑन द 5th डे लास्ट जजिंग सेशन हुआ था, जहाँ पे सभी जो पार्टिसिपेंट्स थे फॉर द प्रॉब्लम्स सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, उन्होंने उनके प्रपोज्ड सॉल्यूशन एंड प्रोटोटाइप प्रेजेंट किए। This was Okay, the flow. so ये जो लास्ट डे था that must have been kind of nerve wracking because और भी solutions थे आसपास, तो आप कितना confident feel कर रहे थे? सो फर्स्टली तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे बिकॉज सारे टीम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे, उनका भी प्रोटोटाइप बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। सो वी खुद में आत्मविश्वास रखा और टीम ने मिलके काम किया। So what do you think what worked for you? Because आपने जो आइडिया लेके आप आए होंगे हैकेथॉन के अंदर, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए होंगे जब मेंटरिंग हुआ, उसके बाद जब जजिंग हुआ, उनका फीडबैक आया, कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे डिमांड की होंगी, कुछ चीज़ें शायद उन्होंने चेंज करने के लिए भी बोला होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई होंगी, फीडबैक्स हुए होंगे, तो यू मस्ट हैव आई एम श्योर पिवटेड क्वाइट अ बिट ऑन ऑल 5 days. सो ये सब एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाउ मच वाज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द दैट इवेंट इटसेल्फ इन योर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट? सर, अगर नोडल सेंटर की बात की जाए तो उन्होंने हमें एक पर्सनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रोवाइड किया था, जो हमें हमारे टीम को और द नोडल सेंटर के जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो हम तक सीमलेसली पहुंचे। पीओसी वाज सो गुड, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम तक नहीं आ रही है। आफ्टर दैट अगर बात रही प्रॉब्लम्स जो टैकल की हमने 5 days में,
throughout the building the prototype. So सर हमारा एक प्लस पॉइंट ये था कि हम द ग्लोबल लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसके ऊपर काम कर रहे थे, दैट इज कि कार्बन फुटप्रिंटिंग। हम हमारा सॉल्यूशन कार्बन फुटप्रिंटिंग को रिड्यूस कर रहा था, एज शांतनु एक्सप्लेन्ड दैट द फॉल्ट डायग्नोसिस स्विच जो अभी फिलहाल में एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो टेक्नोलॉजी स्टैक एग्जिस्ट करती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो हमने कम कॉस्ट में द सेम एंड द बेटर फंक्शनल स्विच बनाया। सो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहा हमारे थ्रू आउट द हैकेथॉन में, और जजेस उस पॉइंट से इम्प्रेस्ड थे। So basically जो novelty आप उसमें ऐड कर पाए, that became that, you know, the point where you got to clinch the title, right? Yeah. So now I would like to ask you, what is the road ahead? अब इसके बाद आप इसमें कुछ R&D करके इसको डेवलप करना चाहते हो, या इसको आपका आइडिया है थोड़ा कमर्शलाइज करने का? What is the next step that you're thinking of now? यस सर, हम आगे का सोच रहे हैं कि हम एक प्रोडक्ट बिल्ड करें सर, क्योंकि ये जो मतलब प्रॉब्लम था, जैसे साक्षी ने बताया, ग्लोबल लेवल पे अराइज करता है, एंड इसका सॉल्यूशन आना बहुत नेसेसरी है। सो यस सर, वी आर करेंटली इन अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। सो पहले हम इसका पूरा डिजाइन पेटेंटिंग करेंगे, इसका पूरा प्रॉपरली पेटेंट फाइल करेंगे डिजाइन पेटेंट का, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के बाद हम उसी का भी पेटेंट कर लेंगे, ताकि ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो कोई चुराए ना। एंड सर जब ये पूरा डेवलप हो जाए तब हम एक प्रोडक्ट बना के, जैसे हमने स्टार्टिंग में नाम दिया था विक्रमा सिंक, सो उसी नाम से हमारा ये चलेगा आगे भी। तो सर currently we are thinking of a product development startup. So I think that's a very good thought. Not only product development, but इसको IP protection भी इसको देना, because we recommend all our innovators to go ahead and do that. Patent your innovations. So good that you're already thinking of it, and congratulations once again for winning this competition and doing some awesome commendable work. So guys, I would end this with thanking you for coming here and sharing your thoughts, sharing your innovation with all of us. And we wish that you take this forward and become a big enterprise in the coming years. So we wish you all the best in that journey of yours. And congratulations once again for being a winner. Thank you so much for joining us today. Thank you for having us, sir. Innovations like Vikrama Sync can play a critical role in ensuring a reliable, sustainable, and energy-efficient supply. Backing such innovations and innovators is key to achieving global energy transition goals. In the next edition, we will meet another group of young innovators from SIH. Keep watching.